So good morning to all of you and welcome back again in the Bhalerao Science College Sauner online classes for BSc Semester 1, which was conducted by Mr. C.T. Potode, Assistant Professor of Department of Botany, Bhalerao Science College Sauner. So good morning to all of you, and here we are going to discuss the Semester 1 paper 2, which having the name Fungi, Plant Pathology, Lichens, Bryophyta, and the mushroom cultivation. So in previous lecture we have already started this paper 2 of fungi, plant pathology, lichens, Bryophyta, and the mushroom cultivation. So in this paper we will going to discuss the part of the fungi, that is unit 1. Means the paper 2, it consists of total 4 units. The first unit consists of the part of fungi, and this fungi part, it having the different points like the general characters of fungi, as we have already discussed in the previous lecture. I think all of you are noted down these points which are involved in the unit 1 of paper 2. The general characters of fungi, then classification of fungi, which was proposed by that specific scientist Alexopoulos, 1996. So we have to follow the classification of fungi which was proposed by the scientist Alexopoulos and Mims in 1996. The next topic, that is the economic importance of fungi, we will going to discuss. And we have to discuss the 4 main genus of fungi, that is the albugo, mucor, Puccinia, and the Cercospora. Along with the theory lectures and the theory classes, we have to also perform these 4 genus in your practical. ये 4 genus जो है यहाँ पे, ये 4 genus हमें practical में भी perform करने हैं. The material related to the albugo, mucor, Puccinia, and the Cercospora. Unit 4 consists of the part of skill development. It is related to the mushroom cultivation, which having the 3 basic points. That is the introduction, related to the nutritional and medicinal value of edible mushroom. Then we will going to discuss some of the poisonous mushroom. Edible mushroom having some examples in your syllabus, that is Wolveriella wolvacea, Pleuropecitrino pileatus, and Agaricus bisporus. Next to the introduction, that is a second basic point, technology of mushroom cultivation, and it is related with the infrastructure which is required for the mushroom cultivation. Mushroom cultivation infrastructure required a mushroom unit, which is commonly called as a thatched unit. Then tools required for the mushroom cultivation, that is the polythene bags, vessels, inoculation hooks, inoculation loops, low-cost stove, sieves, culture racks, water sprayer, tray, and a medium. The third basic point involved in the mushroom cultivation, that is the substrate, preparation of medium, then spawn, sterilization techniques and sterilization methods, multiplication methods, bed preparation. Bed preparation required some raw material. The raw material like paddy straw, sugarcane trash, or the banana leaves. This can be used for the preparation of bed. I know that this is very fresh morning, so you should have to be all again the fresh here in the classroom. किसी ने भी सोना नहीं है, ठीक है? किसी को अगर नींद आती होगी तो आप लोग जाके सो सकते हो, ठीक है? कुछ लोग है यहाँ पे स्क्रीन के सामने, उनकी स्क्रीन ऑन है,
इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि स्क्रीन आप लोगों की ऑन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक दो कैंडिडेट दिख रहे हैं कि जो अभी भी मूव हो रहे हैं, ठीक है, एज लाइक नाजा नाजा, द साइंटिफिक नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो द साइंटिफिक नेम दैट इज नाजा नाजा. So the first one, the point it is related in the mushroom cultivation, that is the introduction, then the part of technology of mushroom cultivation, which is related to the infrastructure, and the third point, that is the techniques. Now come to the point that the unit one, fungi, it having the different types of fungi, and first of all, it's our duty to know that what is meant by the fungi. फंजाई क्या होता है ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए. इट इज रिलेटेड विद द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, देन द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, देन पैथोजेनिसिटी ऑफ फंजाई, एंड द ब्रीफ इंट्रो ऑफ सम ऑफ द फंजाई. ठीक है, कुछ फंजाई से रिलेटेड हम लोग ब्रीफ इंट्रो लेने वाले हैं. ब्रीफ इंट्रो मतलब सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंजाई. कुछ स्पेसिफिक फंजाई से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं. Then we know that the fungi are placed at a separate kingdom called as a kingdom fungi. यहाँ पे इन्होंने बताया कि that there are total 6 kingdoms are available in the classification, but basically that there are only 5 kingdom system of classification. ठीक है, 5 kingdom system of classification which was proposed by the scientist R.H. Whittaker, which consists of the 5 main kingdoms: kingdom Protista, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. They divided this kingdom Monera into the 2 main kingdoms, that is a kingdom Eubacteria, which is a part of true bacteria, and the kingdom Archibacteria, which is commonly called as the ancient bacteria. So in these 6 or 5 kingdom system of classification, the kingdom Fungi, it got the separate kingdom. ठीक है, it is placed at the separate kingdom. Kingdom Fungi को एक separate kingdom में रखा गया है. ठीक है. Now what is this kingdom system? It is a part of system of classification. ठीक है, are you getting my point? सब लोगों को समझ में आ रहा है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो या फिर सिर्फ देख ही रहे हो? सब लोगों को समझ में आ रहा है? हमारा कौन सा यूनिट है? यूनिट 1 है कि यूनिट 2 है? बैठे बैठे बताओ. यूनिट 1 है कि यूनिट 2 है? कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है. इज इट यूनिट 1 और यूनिट 2? आप लोगों को बैठे बैठे ही वहां पे बताना है, मुझे समझ में आ जाएगा आप लोगों ने बताया तो आंसर. राइट, इट इज यूनिट 1. दैट निकिता येलेकर गिव्स द प्रॉपर रिस्पांस. डोंट आंसर इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है जब तक पूछा नहीं जाता, तब तक आपको बैठे बैठे ही वहां पे रिवाइज करना है अपने घर पे ही. These are the online classes, that's why it's your duty to give me response. ठीक है, आप लोगों ने रिस्पांस देना है वहां पे. So it is a part of unit 1. और हमारा पेपर कौन सा है? पेपर 1 है कि पेपर 2 है? It's a paper 2, right? ठीक है. What is the name of paper 2? पेपर 2 का नाम क्या है? The name of paper 2, it is a fungi, lichens, bryophyta and a mushroom cultivation. Right? ठीक है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ गए आगे आके, आप लोगों को अटेंटिव भी रहना है, इसीलिए मैंने आपको वीडियोस ऑन रखने के लिए कहा है. So we are going to discuss the semester 1 paper 2, that is a fungi, plant pathology, lichens, bryophyta and the mushroom cultivation. ठीक है, ये है हमारे पेपर 2 का नाम. और उसमें हम पेपर 2 में हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1. यूनिट 1 में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फंजाई. सो व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? हमारे टॉपिक का नाम क्या है? फंजाई. द नेम ऑफ टॉपिक इज द फंजाई. इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस भी आएंगे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एकदम आराम से बैठे बैठे एकदम सुन लेना है और कुछ रिवाइज नहीं करना है, तो नोट डाउन नहीं करना है. ठीक है. So the unit 1, it consists of the fungi, the part of fungi,
and we will going to discuss the general characteristics of fungi. ठीक है, सबसे पहले general characteristics देखेंगे fungi से related. So the characteristics of fungi. The fungi are non-plants or the non-photosynthetic organism. ठीक है, these are not plants. Fungi जो होते हैं वो plants नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास में कोई भी photosynthetic pigment नहीं होता है. They are eukaryotes. वो eukaryotes होते हैं. The nucleus of fungi it is well developed nucleus होता है. Then fungi are non-motile. Then most of the fungi they are saprobes. ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो fungi होती है वो क्या होती है? Saprobe. That is saprophytic in nature. ठीक है, वो saprophytic in nature होती है. Saprophytic का मीनिंग मैंने आप लोगों को इसके पहले के लेक्चर में बताया था, फिर भी बताता हूँ. Saprophytic मतलब the organisms which is lived on the dead organism. ठीक है, and organism which shows the absorptive mode of nutrition. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो एब्जॉर्प्टिव मोड में लेते हैं. एब्जॉर्प्टिव मोड में मतलब इनके पास में ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है टू ईट दैट पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है, इनके पास माउथ वगैरह नहीं होता है फंजाई के पास. They having the strong structure which is called as strong structure for the absorption which is called as the mycelium. ठीक है, mycelium के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आई थिंक मैंने आप लोगों को लिखने के लिए भी बोला था कि that what is mean by this mycelium, then what is mean by this hyphae. ठीक है, so here we are going to discuss that the characteristics of fungi. The first point, related to the fungi. ध्यान से सुनेंगे सब लोग. What is meant by fungi? That the fungi are multicellular or unicellular eukaryotic organism. The multicellular or unicellular eukaryotic organism is called as the fungi. उसे हम fungi कहेंगे. ठीक है, the fungi does not consist of any type of photosynthetic pigment. fungi के पास में कोई भी टाइप का photosynthetic pigment नहीं होता है. ठीक है, then the body of fungi, ये point important है. The body of fungi is made up of highly delicate branched structure called as mycelium. ठीक है, what is mycelium? The body of fungi is made up of highly delicate branch structure. You can write down the point. आप लोग लिख सकते हो या फिर नोट डाउन करके रख सकते हो. The body of fungi made up of highly delicate thread-like branched structure. The body of fungi consists of highly delicate thread-like branched structure is called as mycelium. Now the answer is required from the specific candidate. मुझे एक specific candidates के through एक answer required है in my chat box. ठीक है, chat box में answer required है specific candidate की तरफ से. Miss Divya Doifode, tell me what is mean by the mycelium. Write down in the chat box and send me immediately. Miss Divya Doifode, write down the answer and send me in the chat box. Remaining participants of online classroom, you have to keep on your videos, otherwise you will be removed from the classroom. आप लोगों को क्लासरूम से रिमूव कर दिया जाएगा. ये बहुत बार बता चुका हूं मैं, इसके आगे नहीं बताऊंगा. Here there are some names of the candidates like the Vivo 1906, then Anjali Prasad, then Redmi, then Redmi 4,
So these are the candidates. They off their videos. Strictly warn you that I will remove from your classrooms. आप लोगों को क्लासरूम से रिमूव कर दिया जाएगा. So no one responds, and I think specific response from the Divya Doifode. She doesn't giving me response in the chat box. It means that she's not serious in the classroom. She's just enjoying the classroom. Only from Divya Doifode, not from Runali Walukar. I'm not asking to Runali Walukar. The question is for only for Divya Doifode. So just follow the rules and follow the regulations of our online classroom. Otherwise, you will debar from the classroom. ठीक है, आप लोगों को remove कर दिया जाएगा classroom से. So that here we are going to discuss the general characteristics of the fungi. देखो आप लोगों को general characteristics ही समझने हैं. आगे आप लोगों को बड़े-बड़े concept आने वाले हैं fungi से related. So the first point related to the fungi. आपको यही नहीं पता होगा कि fungi क्या होता है, तो आगे क्या पढ़ोगे फिर? Genus के बारे में क्या पढ़ोगे? पक्सिनिया के बारे में पढ़ना है, सर्कोस्पोरा के बारे में पढ़ना है, म्यूकर के बारे में पढ़ना है. ठीक है. So here we are going to discuss that fungi, that the body of fungi is made up of highly delicate thread-like branch structure called as the mycelium. This is the answer of my question. ये आंसर था मेरे क्वेश्चन का. ठीक है, कि जो मैंने दिव्या दोईफोड़े को पूछा था. बाकी लोग भी अटेंटिव है कि नहीं है, मैं आप लोगों को अल्टरनेटिवली क्वेश्चन पूछते रहूंगा. ठीक है, और देखते रहूंगा. अभी भी कुछ लोगों के वीडियोस जो है वो ऑफ ही है. जस्ट अ मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगता है रिमूव करने के लिए. So my work is finished. Now come to the point that the characteristics of fungi is related with the first point, that is the fungi. The body of fungi is made up of highly delicate branch structure, highly delicate branch thread-like structure, which is called as the mycelium. So what is mycelium? Mycelium, it is the highly delicate thread-like branch structure of fungi is called as a mycelium. ठीक है, आप लोगों को वहीं पे रिकॉल करना है, बैठे बैठे रिकॉल करना है मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ. ठीक है. सो व्हाट इज माइसेलियम? माइसेलियम क्या होता है बताओ सब लोग. The body of fungi is made up of highly delicate thread-like branch structure is called as the mycelium. उसे हम mycelium कहते हैं. ठीक है, यानी फंजाई की जो बॉडी रहेंगी या फिर फंजाई का जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा वो बहुत सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर, यानी हाईली डेलिकेट, बहुत ही नाजुक ऐसे धागों जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, और उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माइसेलियम. वी कॉल्ड इट एज अ माइसेलियम. देन दिस माइसेलियम, ये जो माइसेलियम होता है, दिस माइसेलियम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल फिलामेंट. इस माइसेलियम में अगर सिंगल फिलामेंट आता है, जो सिंगल फिलामेंट होता है माइसेलियम का, द सिंगल फिलामेंट ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड एज द हाइफी. ठीक है, जो सिंगल फिलामेंट होता है माइसेलियम का उसे हम कहते हैं हाइफी. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस हाइफी ऑफ फंजाई? द सिंगल फिलामेंट ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड एज द हाइफी. उसे हम हाइफी कहेंगे. ठीक है. Then this hyphae, it may be a branch or it may be a unbranched. Hyphae जो होती है, सिंगल फिलामेंट जो होता है, उसको एक तो ब्रांचिंग रहेंगी या फिर वो विदाउट ब्रांच रहेगा. ठीक है. जिस हाइफी को, देखो ध्यान से सुनेंगे, जिस हाइफी को
ब्रांच प्रेजेंट रहेंगी, द हाइफी विच शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच, जो हाइफी ब्रांच शो करेंगी एज लाइक दिस। देखो यहाँ पे इफ द हाइफी, देखो यहाँ पे एक सिंगल फिलामेंट है, इस सिंगल फिलामेंट को अगर ब्रांचिंग आती है सो इट इज द सेप्टेड हाइफी। ठीक है, सेप्टा मीन्स ब्रांच, सेप्टेड हाइफी। एंड इफ द हाइफी विदाउट सेप्टा, अगर हाइफी को ब्रांच नहीं है, विदाउट सेप्टा, विदाउट ब्रांच, इट इज कॉल्ड एज असेप्टेड हाइफी। ठीक है, मैंने आप लोगों को तीन चीजें बताई, बॉडी ऑफ फंजाई, उसके बाद में सिंगल फिलामेंट ऑफ फंजाई, और सिंगल फिलामेंट को अगर ब्रांच होती है तो उसे क्या कहते हैं, और ब्रांच नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं। फिर से बताता हूँ, द बॉडी ऑफ फंजाई, द बॉडी ऑफ फंजाई which consists of highly delicate thread-like network-like structure or the branch structure like this। यहाँ पे आप लोगों को एक कॉटनी अपीयरेंस ब्रांच स्ट्रक्चर ब्रांचिंग पैटर्न में दिख रहा है, थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ माइसेलियम, इसे हम कहते हैं माइसेलियम। इनमें से अगर हम लोग एक धागा निकाल ले, ठीक है, एक फिलामेंट अगर निकाल ले, सिंगल फिलामेंट अगर निकाल ले, द सिंगल फिलामेंट ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड एज द हाइफी। फंजाई के सिंगल फिलामेंट को कहते हैं हाइफी, राइट। ठीक है, अगर हाइफी को ब्रांच डेवलप होती है, तो उस हाइफी को हम कहेंगे सेप्टेड हाइफी, द हाइफी इज सेप्टेड। ठीक है, अगर सिंगल फिलामेंट को ब्रांच नहीं होती है, सिंगल फिलामेंट को ब्रांच नहीं होती है तो उसे हम कहेंगे असेप्टेड हाइफी। ये तीन चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी फंजाई से रिलेटेड, क्योंकि आगे चल के मैं सिर्फ यही वर्ड यूज करूंगा, माइसेलियम, हाइफी, देन सेप्टेड हाइफी और सेप्टेड हाइफी। तो वहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि व्हाट इज मीन बाय दिस माइसेलियम, व्हाट इज मीन बाय दिस हाइफी एंड व्हाट इज मीन बाय दिस सेप्टेड और असेप्टेड हाइफी, राइट। सो कम टू द पॉइंट, here we are going to discuss the characteristics of fungi। So the fungi, these are, they show the absorptive heterotrophs। fungi जो होते हैं वो absorptive heterotrophs होते हैं। absorptive मतलब they absorb their food material, ठीक है, वो food material को consume नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, fungi को absorb करना पड़ता है। fungi को देखा है आप लोगों ने आपके घर में ब्रेड पे या फिर फूड मटेरियल पे कॉटनी अपीयरेंस जो आ जाता है, कॉटनी मटेरियल जो बन जाता है, इट इज नथिंग बट द फंजाई, वो फंजाई ही होता है। वो फंजाई क्या करता है, उस मटेरियल पे अपने फिलामेंट्स जमा लेता है, बहुत सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, और वो धागे, वो फिलामेंट्स उस मटेरियल में पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट मतलब उसमें घुसाता है, ठीक है। पेनिट्रेट क्यों करता है, पेनिट्रेट क्यों करता है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उस फूड मटेरियल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए वो फंजाई अपने फिलामेंट उस मटेरियल में पेनिट्रेट करता है, ठीक है। नाउ कम टू द वर्ड हेटेरोट्रॉप्स। व्हाई वी कॉल्ड द फंजाई एज अ हेटेरोट्रॉप्स, बिकॉज फंजाई कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। फंजाई जो होते हैं वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। इसके पहले की स्लाइड में हम लोगों ने लिखा था द फंजाई दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फंजाई कैन नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फंजाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते प्लांट्स जैसे, इसलिए फंजाई को इन लोगों ने कहा है हेटेरोट्रॉप्स, दे कॉल्ड इट एज अ हेटेरोट्रॉप्स। सो द फंजाई दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स। फंजाई क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और दूसरों पे डिपेंड रह के एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। दे डाइजेस्ट द फूड फर्स्ट एंड देन एब्जॉर्ब इट इनटू देयर बॉडीज, ठीक है। यानी वो जो फूड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिस फूड मटेरियल पे ये फंजाई ग्रो होते हैं उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद में फंजाई को उस मटेरियल को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
Fungi release the digestive enzymes to break down the organic material or their host. ठीक है, फंजाई जो होते हैं, ठीक है, फंजाई जो होते हैं, फंजाई कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है, फंजाई के पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को, मतलब फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल एज लाइक फॉर एग्जांपल द ब्रेड, ठीक है, ब्रेड वगैरह पता है आप लोगों को, आप लोगों के घर में लाए जाते हैं ब्रेड, ठीक है, अभी तो बहुत बार लाए होंगे आप लोगों ने घर पे कुछ डेलिकेसीज या फिर कुछ मटेरियल बनाने के लिए, जैसे कि आप लोग ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाते हो, ठीक है, घर पे, या फिर कुछ अलग मटेरियल्स वगैरह बनाते हो, ठीक है, गर्ल्स जो होती है ज्यादा वो दाबेली वगैरह एक्सेट्रा ऐसे कुछ फूड्स, ठीक है, कन्फेक्शनरी बनाती रहती है, तो ब्रेड वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर वो ब्रेड आप लोग ज्यादा दिनों तक रखते हो घर पे, ठीक है, तो उस पे ये फंजाई ग्रो हो जाते हैं, और वो फंजाई क्या करते हैं, these fungi they release the digestive enzyme, क्या रिलीज करते हैं, digestive enzymes, ठीक है, so the fungi release the digestive enzyme to break down the organic material organic material का मतलब food material, ठीक है, या फिर उनके होस्ट को, ठीक है, even the host it may be any organism, it may be a plant or it may be an animal, ठीक है, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए फंजाई कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती है, ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंजाई स्टोर द फूड एनर्जी एज अ ग्लाइकोजन, ठीक है, फंजाई जो होते हैं वो उनका जो फूड होता है, ठीक है, या फिर उनकी एनर्जी जो होती है वो स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, सो द फंजाई स्टोर द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज, यू कैन गो डाउन इन योर चैट बॉक्स, आप लोग चैट बॉक्स में जा सकते हो आपके, और मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, फंजाई जो होते हैं उनका फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, राइट, फंजाई स्टोर देयर फूड एनर्जी और द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनेंगे, माय क्वेश्चन इज, द प्लांट स्टोर देयर फूड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विच मटेरियल, प्लांट्स जो होते हैं वो उनकी फूड एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं, यहाँ पे जैसे ग्लाइकोजन दिया है, तो प्लांट के केस में भी एक स्पेसिफिक मटेरियल आता है, जिसको आंसर आता है, यू कैन मैसेज मी इन द चैट बॉक्स, हियर कम्स सम मैसेजेस फ्रॉम द जानवी गांडोले, देन वैष्णवी, देन तेजस वालुकर एंड दिव्या डोईफोडे. Divya Doifode, is it a cellulose? And it is not ATP. Directly ATP नहीं बनाए जाते हैं. The correct answer is coming from that Janvi Gandole, right? आपका अगर सिस्टम नेम अगर होता है यहाँ पे, तो आप लोगों ने यहाँ पे नाम भी भेजना है, ठीक है, अगर नाम है तो भेजने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे जैसे मुझे नाम दिख रहा है जानवी गांडोले, so that Janvi Gandole gives the perfect answer that it is the glucose, ठीक है, so that the plants store their food energy in the form of glucose, right, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फंजाई ने अपना फूड मटेरियल जो है या फिर फूड एनर्जी जो है वो स्टोर किया है यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं उनका फूड मटेरियल स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. Then the fungi are acting as important decomposers. Fungi जो होते हैं वो decomposers का काम करते हैं. Decomposers मतलब they break down the organic food material or the dead bodies of plants and animals. Why they decompose that material? For recycling of nutrients in the environment. ठीक है. So the fungi are acting as an important decomposer. Fungi जो होती है वो important decomposer का काम करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर का काम करते हैं, और साथ ही में वो क्या करते हैं, दे रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट इन द एनवायरनमेंट.
इन्हें जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स के डेड पार्ट्स या फिर डेड बॉडीज जो होती है उनको ब्रेक डाउन करके उनमें जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो न्यूट्रिएंट्स फिर से एनवायरनमेंट में मतलब फिर से सॉइल में रिलीज करने का काम कौन करते हैं? फंजाई। एंड दिस फंजाई इट इज पॉपुलरली नोन एज द डिकम्पोजर्स। फंजाई को डिकम्पोजर कहा जाता है, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। ज्यादातर फंजाई क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है, एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट दिए हैं, देखो सिंगल सिंगल सेल्स दिख रही है आप लोगों को। यूनिसेलुलर, द यूनिसेलुलर फंजाई इज ओनली द ईस्ट, ठीक है, विच हैविंग द साइंटिफिक नेम सैकेरोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। ईस्ट का साइंटिफिक नाम है सैकेरोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। तो ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है और बाकी की ज्यादातर जो फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। Then fungi lacks the true roots, stem and the leaves. As like the plants, plants में जैसे distribution होता है plant body का, that plant body consists of the root, stem and leaves, ठीक है। ऐसा कोई distribution fungi के केस में नहीं होता है, ठीक है। That's why they give this point. The fungi lacks the true roots, stem or the leaves. fungi के पास true roots नहीं होते हैं, stem भी नहीं होते और leaves भी नहीं होते, ठीक है। I think you all are getting all these points. सब लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये रिवाइज करते रहने हैं पॉइंट सभी आप लोगों ने। So I think the time is going off, and that's all for today. Now do one thing. All of you go in your chat box. सब लोग अपने chat box में जाएंगे and write down there your name and one word, that is present. वहां पे सिर्फ इतना ही लिखना है, आपका नाम लिखना है और साथ में एक वर्ड लिखना है प्रेजेंट। Go to in your chat box, write down your name and give one word, that is present. It is related to your attendance in the classroom. And it is mandatory because without this you will be absent in the today's lecture. Who is this Redmi 4A1? Who is this Redmi 4A? Keep on your video. आपका वीडियो ऑन कीजिए। Redmi 4, आपको कितनी बार बताया गया है कि that you have to keep on your video during our lecture? और बाकी फ्रेंड्स को भी बताओ, आपके लेक्चर शुरू हो चुके हैं, उनको इन्फॉर्म कीजिए। हाँ, Redmi 4 कौन है तो पता नहीं, अगली बार से अपना वीडियो ऑन रखना है, ठीक है। आई थिंक यू ऑल ऑफ यू हैव डन योर अटेंडेंस। आप सभी ने अपनी अटेंडेंस दे दी है यहाँ पे। So thank you for the proper response of students in this classroom. तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं, आप लोगों ने वो रिवाइज करते जाना है, नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। एंड these videos are also displayed on the YouTube channel, ठीक है, every Thursday and Sunday, so you can take the reference from there, ठीक है। आप लोग रेफरेंस ले सकते हो वहां से। और मेन चीज आप लोगों को ये है कि आप लोगों ने ये पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, उसको रिवाइज करते रहना है। हम रिवाइज किए बगैर आगे का लेक्चर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को स्टे होम, स्टे सेफ।